Bismillahirrahmanirrahim. Today we will discuss our very important topic about the basics of pharmacokinetics, and the topics are the sites of drug administration. तो आज हमने sites of drug administration को discuss करना है, and then we will discuss about the relationship between the administered dose and the amount of drug in the body. तो दूसरा जो हमारा टॉपिक है जो इस लेक्चर में हम कवर करेंगे, दैट इज़ अबाउट द एडमिनिस्टर्ड डोज एंड द अमाउंट ऑफ ड्रग इन द बॉडी. So let's begin with the first slide, that is about the routes of or the sites of drug administration. Basically जब हम ड्रग को एडमिनिस्टर करते हैं, वी हैव टू मेजर एडमिनिस्ट्रेशन. हमारे पास दो मेजर एडमिनिस्ट्रेशन होती है. द फर्स्ट वन दैट इज़ कॉल्ड एज द इंट्रावेस्कुलर रूट. तो पहला हमारे पास जो होता है जिस रूट के थ्रू हम ड्रग को एडमिनिस्टर करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज द इंट्रावेस्कुलर रूट. और द सेकंड रूट दैट इज़ कॉल्ड एज द एक्स्ट्रावेस्कुलर. एक्स्ट्रा मीन्स यानी कि दिस इज नॉट वेस्कुलर रूट, सो दैट इज द एक्स्ट्रा वेस्कुलर रूट. So this route is called as the extravascular because it does not involve the direct administration of the drug uh, into the vessels. ये blood vessels में drug की administration को involve नहीं करता, so that's why it is called as the extravascular route. So in case of the intravascular route means within the vessels, we have the two routes. The one that is called as the intravenous route. हमारा पहला रूट जो इंट्रावेस्कुलर रूट के अंदर आता है, दैट इज कॉल्ड एज इंट्रावीनस रूट. ये वो रूट है कि जिसमें द ड्रग इज डायरेक्टली एडमिनिस्टर्ड इनटू द वेन, दैट इज कॉल्ड एज इंट्रावीनस रूट. और इंट्रा venous route हो या it is the intra-arterial route हो, that is also the part of intravascular route. The bioavailability of the drug is 100%. एक चीज़ आपने माइंड में रखनी है कि इसमें ड्रग की जो बायोअवेलेबिलिटी होती है या अवेलेबिलिटी होती है, दैट इज़ 100%. एंड देयर इज़ नो अब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग because drug directly go into the blood, कि इसमें absorption नहीं होती, direct drug it is going into the blood. So that's why we call this route that in this route, I mean the intravascular route, whether it is the intravenous route or intra-arterial route, the bioavailability of the drug will be 100%. इसको हम 100% कंसिडर करते हैं. और आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि वन, अगर फ्रैक्शन में आप इसको प्रेजेंट करते हैं तो आप वन फ्रैक्शन में भी प्रेजेंट कर सकते हैं, और अगर परसेंटेज में आप प्रेजेंट करते हैं, यू कैन प्रेजेंट इट एज ए परसेंटेज दैट इज 100%. So the bioavailability of the drug is 100%. So that is very important in case of the pharmacokinetics, and there is no absorption. जब हम इसकी ग्राफ और कर्व को डिस्कस करेंगे, so there will be no absorption. Then we will be discussing the intravascular route को हम जब डिस्कस करेंगे, there will be no such absorption. So it does not involve the absorption of drug, and the drug is 100% bioavailable. Bioavailability की definition, calculation और इसका bioequivalence में role क्या है, we will discuss in the coming lectures. Okay, so the next one that is called as the extravascular route, which means the drug is not directly administered into the vessels, and these include the oral route. Most of the drugs like tablets, capsules, हम ज़्यादातर जो है डोजेज फॉर्म जो है वी टेक बाय ओरल रूट. सो द ओरल रूट इज द फर्स्ट एक्स्ट्रावेस्कुलर रूट. देन वी हैव द इंट्रामस्कुलर रूट. जब हम ड्रग को इंट्रामस्कुलर रूट के थ्रू देते हैं इनटू द मसल्स, इट इन्वॉल्व द एब्जॉर्प्शन बिकॉज द ड्रग हैज टू गो फ्रॉम द मसल इनटू द ब्लड. So that's why it will involve the absorption. And the next is the subcutaneous administration. Sub means below, and cutaneous means below the skin. इसमें हम the drug is administered below the skin, इसको that is called as the subcutaneous administration. The next administration of drug can be through the sublingual or buccal route. That means the drug is placed below the tongue. इसमें drug it is placed below the tongue. It is not directly
administered into the blood vessel, but that is called as the this is called as the extravascular route. Then we have the rectal route. That means that sometimes the suppositories they are given through the rectum, so that is called as the rectal route. And the next one, that is called as transdermal drug delivery system. That means some of the patches they are applied through the transdermal drug delivery system. And we have the inhalation route. Inhalers ka jo some of the drugs they can be given, like the bronchodilators, can be given through inhalation route. So all these routes, including the oral, intramuscular, subcutaneous, sublingual, rectal, transdermal, and inhalation route, they are called as the extravascular route because drug is not directly given into the blood vessels. So that's why it is called as the extravascular route. Number one. Number two, the bioavailability of the drug is less than 100%. There could be some exceptional cases, but in general, the bioavailability of the drug is less than 100%. आप इसमें देखेंगे कि the bioavailability is less than 100%. अगर आप इसको फ्रैक्शन में प्रेजेंट करते हैं, that means कि जब आप फ्रैक्शन में करते हैं तो मीन्स कि इट विल बी लेस देन वन. ये दिस सिंबल इज यूज फॉर लेस and it is less than 1. हम इसको जब फ्रैक्शन में, because the fraction is maximum 1, so the bioavailability will be the less than the 1. bioavailability इसकी क्या होगी? It will be less than 1. And there is, yes, absorption phase is present, so that's why the bioavailability is less than 1. तो इसलिए क्योंकि इसके अंदर absorption phase is present. तो ये कुछ differences हैं regarding the pharmacokinetics. Because our target is pharmacokinetics, so we should keep these things in mind, that there is no absorption in case of extravascular route, and the bioavailability of the drug is less than 100%. Okay, so the moving to the next slide. That is about the relationship between the administered dose and amount of drug in the body. Very generalized equation. So this is the amount of drug inside the body, कि हमारी बॉडी के अंदर ड्रग की अमाउंट कितनी होती है. That is basically is presented by the equation that is called as the f multiplied by the dose. जब हम dose को f से multiply करते हैं. Now f is what? F is the bioavailability. The in simple words, at this movement we can define the bioavailability as the fraction of dose that reaches the systemic circulation. कि ये systemic circulation में जो fraction it is basically reaching. This is not the portal circulation that is from the GIT to the liver, but it is the systemic circulation that starts when the drug is basically जब हमारी ड्रग अब्जॉर्ब होती है जीआईटी से और लिवर की तरफ जाती है. दिस नॉट सिस्टेमिक सर्कुलेशन, इट इज़ कॉल्ड एज द पोर्टल सर्कुलेशन. इसको हम पोर्टल सर्कुलेशन कहते हैं. ये उसकी डेफिनेशन में नहीं आता. इफ समहाउ any drug it is 100% absorbed and in the liver it get metabolized, so bioavailability is 0%. I mean the metabolized means 100% metabolized हो जाती है. This is called as the first pass effect. So the bioavailability will be 0 in that case. Although drug is absorbed 100%, but it is metabolized inside the liver by after immediately after absorption, passing through the portal circulation and going into the liver. Once it goes into the liver, it is 100% metabolized. तो पहला जो इस movement होती है उसमें अगर 100% metabolize हो जाती है, it means the bioavailability of the drug is 0%. So that's why we consider the fraction of dose that reaches the systemic circulation. In contrast, अगर मैं आपको दूसरी example दूँ, अगर एक drug it is absorbed 100% and in the liver it is not metabolized, none of the amount is metabolized, so and then from the liver it goes into the blood. This the passage of drug from the liver into the blood, it's called the DFU blood, that is called as systemic circulation. Now the bioavailability will be 100%. आप दोनों केसेस में देखिए. केस नंबर 1 में अब्जॉर्प्शन वाज 100%, लेकिन लीवर के अंदर 100% ड्रग मेटाबोलाइज हो गई, तो बायोअवेलेबिलिटी कितनी हो गई? मेटाबोलाइज द ड्रग इज मेटाबोलाइज्ड. इन द फर्स्ट केस ड्रग इज मेटाबोलाइज्ड, हमारी ड्रग मेटाबोलाइज हुई है एंड दैट इज मेटाबोलाइज्ड बाय 100%. तो जब मेटाबोलाइज हुई है 100%, so the bioavailability is 0%.
हम इसको 0%, although it is 100% absorbed, but in the second case the uh, the the drug is 100% absorbed but it is not metabolized in the liver. तो दूसरे केस में भी ड्रग 100% अब्जॉर्ब हुई है लेकिन 0% इट इज मेटाबोलाइज्ड इन द लिवर, ये 0% मेटाबोलाइज हुई है। दैट मीन्स कि इस केस में द बायोअवेलेबिलिटी 100%, इसकी हमारी जो बायोअवेलेबिलिटी है 100% है। So okay, so that will be we will discuss this thing in the bioavailability chapter in details, but for your clarification, the bioavailability is the fraction of drug that reaches the systemic circulation, and A is the amount of drug in the blood कि blood के अंदर कितनी amount है। F is the the fraction of the drug dose that reaches the systemic circulation again, and these that is the dose कि हमारी dose क्या है। So if amount of drug in the blood in the plasma will be equal to fraction, अगर bioavailability 100% है, this F will be equal to 1, क्योंकि हम इसको परसेंटेज में प्रेजेंट कर सकते हैं या फ्रैक्शन में 1। if the bioavailability is 100%, this will be 1, and the amount of drug will be in the body, the amount of drug in the body will be equal to the dose, क्योंकि बायोअवेलेबिलिटी इज 100%, जितनी हमने डोज दी थी उतनी ही ड्रग ब्लड के अंदर सिस्टेमिक सर्कुलेशन के अंदर अवेलेबल है। सो दैट्स वाई द अमाउंट ऑफ ड्रग in the body is equal to the dose. If somehow the bioavailability of the drug is 5.5 और डोज हमारी सपोज कि कोई डोज भी है, वट एवर इज द डोज, so in that situation if the bioavailability is 0.5, so 0.5 means it is the uh, half of the dose is bioavailable, so half of the dose will be present in the blood, हमारे blood के अंदर half drug present होगी। so this very generalized equation, so by putting the value of F, if the 1, the A will be equal to the dose, if F is equal to 0.5 then A will be equal to half of the dose, ये क्योंकि इसकी 0.5 हम वैल्यू पुट करेंगे that is equal to 1/2, so it will be equal to half of the dose। तो हम इस तरह प्रेजेंट कर सकते हैं इसको कि the A, if the F is equal to 1, अगर हमारा F 1 होगा, which means that all the drug it is absorbed from the GIT and it goes into the portal circulation, none of the drug is metabolized in the liver and everything goes into the blood, so F is equal to 1 and this is the dose, जो भी डोज है हमारे 50 मिलीग्राम है जो भी है, so it is equal to 1, so A is equal to the dose, 1 से आप डोज को मल्टीप्लाई करें it will be the equal to the dose। दूसरा थिंग ये है कि द अमाउंट ऑफ ड्रग दैट इज अवेलेबल इन द ब्लड दैट इज 50%, हमारी डोज का 50% अवेलेबल है, सो फ्रैक्शन इज इक्वल टू 0.5, हमारा 0.5 फ्रैक्शन की इक्वल होगा बिकॉज 50% ड्रग हमारी अवेलेबल है इन द ब्लड मल्टीप्लाइड बाय द डोज। तो ये जो अमाउंट ऑफ ड्रग इन द ब्लड है और इन द बॉडी है, so that is equal to 0.5 multiplied by dose, or we can write it dose divided by 2, क्योंकि 0.5 is equal to 1/2, तो ये डोज का हाफ हो जाता है, जो हमने डोज दी थी उसका क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है। सो दैट्स वाई वी कैन से द अमाउंट ऑफ ड्रग इन द बॉडी इज हाफ ऑफ द डोज, उसकी डोज के हाफ है, क्यों, क्योंकि हमारी ड्रग अवेलेबल नहीं है इनटू द सिस्टमिक सर्कुलेशन, 50% तो अवेलेबल नहीं है। So they're a very generalized equation. So the relationship between the you can say the dose and the amount of drug in the body using the intravenous route or intravascular route भी कह सकते हैं, and the extravascular route, उन दोनों सिचुएशन में आपके पास इक्वेशन क्या होगी। So starting from the very basics, and we will moving with very complex concept in the biopharmaceutics and the pharmacokinetics. So the math will be our main strength of this course, where we will try our best to explain everything in details. So the drug is in case of intravenous route or intravascular route, the drug is given directly into the bloodstream, and the amount of drug in the body is equal to the dose. This is the amount of drug in the body, that is X naught is the amount of drug in the body is equal to the dose, and that is equal to
the area under the curve. If somehow we know the area under the curve of that drug, सपोज कि हमने एक ड्रग दी इंट्रावीनस बोलस रूट से और हमने उसका एरिया अंडर द कर्व कैलकुलेट किया, एंड देन फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी, फ्रॉम टाइम जीरो टू इन्फिनिटी हमने उसका कैलकुलेट कर लिया, और इसको हम फर्दर जो हमारी बायोअवेलेबिलिटी के चैप्टर आएगा इसकी डेफिनेशन हम वो करेंगे, बट फॉर सिंप्लीफिकेशन द सिंपल वर्ड्स में अगर मैं एरिया अंडर द कर्व को एक्सप्लेन करूं, दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग that is present in the body within the specific time. Concentration of drug present in the body within specific time, that is called as the area under the curve. In this case, the amount of drug, the concentration of drug present in the body over the टाइम इन्फिनिटी के ऊपर जो ड्रग प्रेजेंट होती है, दैट इज कॉल्ड एज द एरिया अंडर द कर्व फ्रॉम टाइम जीरो टू इन्फिनिटी। उसकी अब टाइम इन्फिनिटी मीन्स व्हाट, कि अप टू इन्फिनिटी, इसकी क्या डेफिनेशन है वी विल डिस्कस अगेन दीज इन्फिनिटी के जो टर्म्स हैं वी विल डिस्कस इन द बायोअवेलेबिलिटी चैप्टर। सो दैट्स वाई जब हम इसको कहते हैं कि दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग दैट इज प्रेजेंट इन द बॉडी ओवर द टाइम, द यूनिट शुड बी, इसकी डेफिनेशन से क्लियर हो रहा है, कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग मींस इसका यूनिट होगा मिलीग्राम, मिलीग्राम एम एल, मिलीग्राम पर एम एल, इसका यूनिट जो होगा मिलीग्राम पर एम एल होगा, और इसका आर होगा, ऊपर आर आ जाएगा। सो वी कैन राइट इन अदर वर्ड्स मिलीग्राम, जो यूनिट होगा आर, या आर की जगह आप कोई और यूनिट यूज़ कर सकते हैं, सेकंड मिनट। इसके लिए आप जो मेजर वो है कैसे कन्वर्ट करते हैं आप मिनट को, आई मीन द सेकंड को मिली सेकंड में कैसे कन्वर्जन होती है, आप जो हमारा मीट्रिक सिस्टम वाला चैप्टर है आप उसको रिवाइज कर लें, सो दैट विल हेल्प यू। सो दिस विल बी द यूनिट, इसका यूनिट जो है ये वाला होगा, सो मिलीग्राम आर पर एम एल, दैट इज द यूनिट। और जो ये के है दैट इज द एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट, एंड दिस इज द फ्रैक्शन कि कितना फ्रैक्शन पर आर बॉडी से एलिमिनेट होता है, तो इसका जो यूनिट है पर आर होता है। सो आई मीन्स इट विल, इस यूनिट विल बी पर आर। सो ये दो हो गए, एंड द नेक्स्ट इज द वी इज द वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हमारा है एम एल, इसका यूनिट क्या होगा एम एल में, सपोज इट इज द यूनिट इज एम एल, तो ये एम एल डिनोमिनेटर में है, ये नोमिनेटर में है, अब इसमें कैंसिल हो जाएगा, ये आर जो है ये डिनोमिनेटर में है एंड ये नोमिनेटर में है, ये कैंसिल हो जाएंगे, सो दैट विल बी द मिलीग्राम, इसका यूनिट बच जाएगा, दैट इज द डोज। तो इसकी जो फंक्शनल एनालिसिस है आप जब करते हैं, सो द यू कैन से द एरिया अंडर द कर्व मींस द कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग प्रेजेंट इन द बॉडी ओवर दैट टाइम, चाहे वो इन्फिनिटी तक है चाहे वो स्पेसिफिक टाइम तक है। कैसे कैलकुलेट करते हैं वो विल डिस्कस इन द कमिंग क्लासेस, एंड के इज द बेसिकली द एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट, एंड इट इज मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू, जो आप उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कितनी अमाउंट बॉडी से एलिमिनेट होती है, फ्रैक्शन है, सो इट विल बी लेस देन वन, तो मोस्टली इट इज लेस देन वन, तो पर आर इसका यूनिट होता है। एंड अगेन दिस इज द वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, हमारा ये वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, दैट मीन्स द वॉल्यूम इन विच ड्रग इज एज्यूम्ड टू बी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, ये फिजियोलॉजिकल वॉल्यूम नहीं है, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अगेन वी विल डिस्कस दिस कॉन्सेप्ट्स इन द कमिंग क्लासेस। Okay, so that is if we want to find the amount of drug in the body at any time, so we should know the area under the curve, elimination rate constant, and the volume of distribution. By using that term, we will be able to calculate the amount. And in case of intravenous route, that is equal to the dose. Use dose ke equal hota hai, because all the drugs goes into the blood or into the body. Okay. सो नेक्स्ट इज द एक्स्ट्रा वेस्कुलर रूट, में जिस तरह मैंने आपको बताया था कि एक्स्ट्रा वेस्कुलर रूट में देयर इज बायोअवेलेबिलिटी फैक्टर, सो द डोज इज यू कैन से दैट इज बायोअवेलेबल, जो ड्रग की अमाउंट बायोअवेलेबल होती है, हेयर एफ के साथ उसने मल्टीप्लाई किया है, तो डोज का जो फ्रैक्शन सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाता है, जहाँ पे इट इज द डोज दैट इज अवेलेबल इन द ब्लड, सो दैट्स वाई डोज इज इक्वल टू एक्स नॉट। इसमें ये जो एफ के साथ उसने मल्टीप्लाई किया है, इट इज शोइंग कि जो डोज का
फ्रैक्शन है दैट इज अवेलेबल, ये भी ब्लड के अंदर अमाउंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो उस डोज का कोई फ्रैक्शन है दैट इज इन द ब्लड, और वी कैन राइट इट एज एफ एक्स नॉट, इस तरह भी हम प्रेजेंट कर सकते हैं, एफ एक्स नॉट दिस इज द डोज एंड एफ इज द फ्रैक्शन, ये उसका फ्रैक्शन है। सारी अमाउंट नहीं जा रही, इफ द ऑल द ड्रग इज अवेलेबल then it will be equal to 1, and the amount of drug will be that will be available in the systemic circulation if there is no metabolism in the liver, the all the dose will be available bioavailable in the systemic circulation। तो ऐसी सिचुएशन में जो डोज होगी that will be equal to the amount of drug in the body। okay, again the same formula दोनों केसेस में आप देखें it is very same, कोई डिफरेंस नहीं है। तो डिफरेंस कहाँ पे आता है, द एरिया अंडर द कर्व का आता है कि ड्रग का एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट भी सेम होता है इसका और इसका, चाहे आप आईवी रूट से दें चाहे आप एक्स्ट्रा वेस्कुलर रूट से दें, दोनों सेम होंगे, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन भी दोनों का सेम होगा दोनों केसेस में। व्हाट डिफर इज द एरिया अंडर द कर्व, इफ द drug is less bioavailable in the blood the area under the curve will be less in this case, इस केस में ज़्यादा होगा तो इसलिए इसकी वैल्यू ज़्यादा आएगी और इसकी वैल्यू कम आएगी। so although the formula is the same but in this situation the result will be less, आपका रिजल्ट उसके कंपैरिजन में it will be less, लेकिन इसका जो होगा it will be greater because area under the curve will be greater, इस केस में area under the curve will be greater, इस केस में area under the curve will be less। so the amount of the concentration of drug present in the body in the specific time, जिसका मैंने आपको बताया area under the curve की definition है। so the where area under the curve from 0 to infinity, area under the curve plasma concentration 1 times 0 to infinity, ये उसने उसकी डेफिनेशन बताया कि इज द फर्स्ट ऑर्डर एलिमिनेशन के रेट कांस्टेंट, इसको फर्स्ट ऑर्डर क्यों कहते हैं, वी विल डिस्कस इन द डिटेल्स कि इसकी क्या वो है, बट इट इज इक्वल टू द फ्रैक्शंस में हम इसको प्रेजेंट करते हैं, इसका यूनिट जो है पर आर होता है। v is the vd is the volume of distribution, f is the fraction of dose, this is the fraction of sorry this is the fraction of dose that is that is present in the that reaches the systemic circulation। again you should know the difference between the systemic circulation and the you can say the portal circulation का आपको difference पता होना चाहिए कि इसका क्या difference है। if you have any question regarding this I will be pleased to address these things। okay, so the moving to the next slide, that is about the graph in case of IV administration। I will go very simply to make the things very clear so that we can इसका basic concept हम मैं आपको दे सकूँ। in case of this is the semi-log and this is the rectilinear graph again। ये सेमी लॉग के ऊपर उसको प्लॉट किया गया है, इसकी हम फर्दर डिटेल्स लेके आएंगे कि हाउ दैट यू विल बी एबल टू प्लॉट द ग्राफ ऑन सेमी लॉग ग्राफ पेपर एंड रेक्टिलिनियर, जिसको हम रेक्टेंगुलर ग्राफ पेपर भी कहते हैं इसको रेक्टिलिनियर को। इस केस में आईवी की फॉर्म में आप देखें कि जीरो टाइम पे द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ड्रग इज अवेलेबल इन द ब्लड, द मैक्सिमम अमाउंट, क्योंकि सारी ड्रग ब्लड के अंदर चली जाती है एंड इट गोज डाउन स्ट्रेट लाइन, इसकी स्ट्रेट लाइन हमें मिलती है सेमी लॉग के ऊपर, वी गेट द स्ट्रेट लाइन। बस ये माइंड में रखना है कि मैक्सिमम एट जीरो टाइम। इन केस ऑफ द एक्स्ट्रा वेस्कुलर एडमिनिस्ट्रेशन आप देखें जीरो टाइम पे अमाउंट इज जीरो बिकॉज इट इन्वॉल्व द एब्जॉर्प्शन। ये देखें एक फार्मूलेशन है, फार्मूलेशन आपके पास बी है एंड सी है, तो ए की आप देखें कि बायोअवेलेबिलिटी या इसकी जो रेंज है ये कैसी है, बी की कैसी है, और सी जो है दैट इज यू कैन से ये दिस वन इज ए, दिस वन इज यू कैन से द सी। सी को अगर आप देखें तो ये एम ई सी, इसको हम डिस्कस करेंगे फर्दर लेक्चर्स में, ये डाउन जा रही है। तो अगर एक ही डोजेज फॉर्म है मीन्स कि दोनों टैबलेट है, एक ही ड्रग है, सपोज आपके पास एक पैरासिटामोल है और उसकी आपने 3 टैबलेट्स बनाई हैं और डिफरेंट टैबलेट्स हैं, यानी कि उसके मेथड ऑफ मैन्युफैक्चर या वट एवर इज द उसकी फार्मूलेशन डिफरेंट है, तो एक फार्मूलेशन से आपके पास ये रिजल्ट आता है, दूसरी उसी टैबलेट का ये आता है, तीसरी के साथ ये रिजल्ट आता है। जो वो आई मीन कि जो आपकी सी फार्मूलेशन इट डज नॉट प्रोड्यूस एनी इफेक्ट although dosage form is the same, formulation is different, so that's why यू कैन सी के एरिया अंडर द कर्व उसका डिफरेंट है। ये जो जगह जो कवर करता है इन सिंपल वर्ड, सपोज कि ये कर्व होती है इट इज कॉल्ड एरिया अंडर द कर्व, इस केस में आपको बहुत ज़्यादा क्लियर होगा ये जो जगह है, ये जिस जगह को ये कवर करता है दैट इज कॉल्ड एज एरिया अंडर द कर्व। इसको हम एरिया अंडर द कर्व कैसे कैलकुलेट करते हैं, विल डू दैट। और इस ये एरिया अंडर द कर्व है, ये एरिया अंडर द कर्व है, दिस इज द एरिया अंडर द कर्व, दैट इज एरिया अंडर प्लाज्मा टाइम लेवल कर्व, तो जिसको हम एरिया अंडर द कर्व कहते हैं। फिर एम ई सी एम टी सी का दैट इज कॉल्ड एज थेरेप्यूटिक रेंज, ये नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास आ रहा है डेटा। ओके, सो
द टाइम कोर्स ऑफ ड्रग एक्शन एंड द फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स। अगर हम एक्स्ट्रा वेस्कुलर रूट से या कोई आप इंट्रावीनस रूट से देते हैं तो कुछ हमारे पास पैरामीटर्स होते हैं दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड वी शुड नो दोज पैरामीटर। द फर्स्ट वन दैट इज कॉल्ड एज द ऑनसेट ऑफ एक्शन एंड सिंपली इसकी जो डेफिनेशन है कि ऑनसेट ऑफ एक्शन क्या है। ऑनसेट ऑफ एक्शन इज बेसिकली इसकी जो डेफिनेशन है द टाइम at which the administered drug reaches a therapeutic range and begins to produce the effect। यानी कि ये वो अमाउंट होती है कि ये वो टाइम होता है कि जिसके ऊपर ड्रग हमारी एडमिनिस्टर्ड ड्रग है उस थेरेप्यूटिक रेंज को टच करती है, उस जगह तक जाती है और वहाँ पे जाके अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करना स्टार्ट करती है। So that is called as the onset of action. So time at which administered drug reaches a therapeutic range and begins to produce the effect that is called as the onset of action। इसको हम कहते हैं onset of action and that is this one। ये वो टाइम है जिसके ऊपर administered drug ये क्या थेरेप्यूटिक रेंज के ऊपर पहुंच जाती है ये वाला टाइम और अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करना स्टार्ट करती है एंड दिस कॉल्ड एज ऑनसेट ऑफ एक्शन। ओके, सो द नेक्स्ट इज ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। ड्यूरेशन क्या है? टाइम फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ इफेक्ट टू द टर्मिनेशन ऑफ एक्शन। यानी ये यहाँ से बिगिनिंग से टर्मिनेशन तक जो टाइम है दैट इज कॉल्ड एज द ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। सो द टाइम वो टाइम जहाँ पे ड्रग अपना एक्शन स्टार्ट करती है टिल टर्मिनेट करती है ये सारा टाइम जो है दैट इज कॉल्ड एज ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। Next is called as the termination of action, the time at which concentration in the plasma falls below the MEC, minimum effective concentration। ये वो टाइम है कि जहाँ पे ड्रग की कंसंट्रेशन मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन से फॉल डाउन करती है। दिस इज कॉल्ड एज द टर्मिनेशन। ये टर्मिनेशन ऑफ इफेक्ट है। अब आगे देखें ना यहाँ पे दिस इज द टर्मिनेशन ऑफ एक्शन। सो द टाइम एट विच the concentration in the plasma falls below the MEC, जब उसे फॉल करती है that is called as the termination of action। इसका termination of action this is called as the MEC, minimum effective concentration जब कम हो जाती है this is called as the action उसका terminate हो गया। Okay, so next is the therapeutic range, the plasma concentration range। ये माइक्रोग्राम पर ml भी हो सकती है, मिलीग्राम पर ml भी हो सकती है, नैनोग्राम पर ml भी हो सकती है। So for this you should know the matrix system जो कि हम पहले क्लासेस में बताते आए हैं। So the definition wise the plasma concentration range within which drug is likely to produce the effect। तो ये वो रेंज है जिस तरह यहाँ पे आप देखें ये वो रेंज है प्लाज्मा कंसंट्रेशन की जहाँ ये आप देखें यहाँ पे कंसंट्रेशन सॉरी ये ड्यूरेशन था यहाँ पे ड्रग की कंसंट्रेशन यहाँ पे इफेक्ट स्टार्ट हुआ और इसका इफेक्ट जो है यहाँ से यहाँ तक एग्जिस्ट कर सकता है अगर ड्रग जाती है ऊपर। सो दिस रेंज दैट इज कॉल्ड एज थेरेप्यूटिक रेंज। इसको हम थेरेप्यूटिक विंडो भी कहते हैं। ये थेरेप्यूटिक विंडो और थेरेप्यूटिक रेंज दे आर ऑलमोस्ट ऑल द सेम। ये सेम चीज़ें हैं लेकिन थेरेप्यूटिक इंडेक्स इनसे डिफरेंट है। So definition wise the plasma concentration range within which drug is likely to produce its effect। So ये वो plasma concentration की रेंज है जिसमें drug is likely to produce, यानी कि इसमें अगर आएगी तो इट इज लाइकली दैट ड्रग विल प्रोड्यूस इट इफेक्ट दैट्स कॉल्ड एज द थेरेप्यूटिक रेंज। और हमारे पास थेरेप्यूटिक रेंज है ड्रग की जिस तरह आप जहाँ इस स्लाइड में देखे रिजक्सिन की थेरेप्यूटिक रेंज नैरो थेरेप्यूटिक रेंज है एंड दैट्स व्हाई इट इज नैरो थेरेप्यूटिक इंडेक्स। इसका थेरेप्यूटिक इंडेक्स जो है बहुत कम है। सो रेंज भी आप देखें 0.5 से 2 नैनोग्राम पर ml है। अगेन अगर आप कन्वर्जन ये मीट्रिक सिस्टम आप हमारे पहले लेक्चर्स देख सकते हैं। थियोफाइलिन की जो थेरेप्यूटिक रेंज है 10 टू 20 माइक्रोग्राम पर ml है। इस तरह फेनिटाइन की 10 टू 20 माइक्रोग्राम पर ml है। कार्बामेजिपिन की 4 टू 12 है। लिथियम की अगेन वेरी टॉक्सिक ड्रग, थेरेप्यूटिक इंडेक्स इज वेरी लो, तो 0.6 से 1.2 इसकी थेरेप्यूटिक रेंज है। वेलप्रोइक एसिड की 50 टू 100 माइक्रोग्राम पर ml है। डिजक्सिन इट इज यूज इन कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। थियोफाइलिन इट इज यूज एज ए जो हमारी ब्रोंकोडायलेटर की क्लास है उसमें ये यूज़ होता है। फेनिटाइन, कार्बामेजिपिन, लिथियम और वेलप्रोइक एसिड इज ये इसमें यूज़ होता है एपिलेप्सी में। और लिथियम कार्बामेजिपिन एंड फेनिटाइन दे आर यूज एज एंटीसाइकोटिक ड्रग। तो ये इनकी थेरेप्यूटिक रेंज है। जिस ड्रग की थेरेप्यूटिक रेंज
बहुत स्मॉल होती है, जिस तरह आप देखो 1.6 से 1.2, so drug, it means drug is very toxic, therapeutic range इसकी कम है, so it is very critical to maintain the drug concentration inside the body and you have to monitor that range. आप उसको monitor करेंगे उस concentration में है या नहीं है. So starting from the you can say the onset of action, duration of action is the, this is the duration of action again from the figure, और फिर MEC that is called as the, you can say the मिनिमम टॉक्सिक कंसंट्रेशन, इसको ड्रग ने क्रॉस नहीं करना, एंड दिस इज द मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन, दिस इज द थेरेप्यूटिक रेंज, दिस इज द ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, this is the termination of action, this is the onset of action, and this is the time. So all these things, they are basically, you can say the related to the extravascular routes के साथ related है. So then in the last slide, that is about the amount of drug इन द यूरिन. जब हम डिस्कस करते हैं कि अमाउंट ऑफ ड्रग अवेलेबल इन द यूरिन, कैसे करते हैं, आप यूरिन को कलेक्ट करते हैं एंड यू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ ड्रग इन द यूरिन. सो कम्युलेटिव अमाउंट मीन्स कि जब आप ड्रग देते हैं तो कम्युलेटिव अमाउंट यूरिन के अंदर इंक्रीज हो रही होती है, यानी कि आप जितनी कलेक्शन करते जाते हैं आपका डेटा इंक्रीज होता है. ड्रग इज गोइंग टू बी एलिमिनेटेड थ्रू द यूरिन. अगर यूरिन से एलिमिनेट होती है तो आपकी अमाउंट इंक्रीज हो जाती है. एक टाइम आ जाता है कि एवरीथिंग इज एलिमिनेटेड, आई मीन द ड्रग इज एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी एंड नथिंग इज लेफ्ट. सो इन दैट सिचुएशन द अमाउंट बिकम कांस्टेंट, आपकी जो क्यूमुलेटिव अमाउंट है इट बिकम कांस्टेंट. So by using this data, you can calculate the bioavailability and other pharmacokinetics के जो parameters हैं आप calculate कर सकते हैं. XU is the amount of drug that is eliminated through urine and it is NJ form. Excretion इसको हम कहते हैं. ये इससे different है from the metabolism या biotransformation से. So this is all about today's lecture. If you have any question, you can mention in the comment section, and please like our this page and subscribe this channel, and so that you can get the very informative the slides related to the biopharmaceutics and the pharmacokinetics आपको मिलती रहें, और इंशाल्लाह you will get the many slides with time. So with this with these remarks, अगर आपको basics जो वो हैं आई मीन के रिलेटेड टू द मीट्रिक सिस्टम वो आपको आने चाहिए. एंड फॉर दिस आई विल रिकमेंड कि आपने जो पहले लेक्चर है जो जहाँ से मैंने स्टार्ट किया है, आप मीट्रिक सिस्टम को फर्दर डिटेल के साथ उसको वो करें, प्रैक्टिस करें, सो दैट यू हैव द फाइनल ग्रिप ओवर द मीट्रिक सिस्टम, और आप इजीली इन चीज़ों को प्रोसीड कर सकें, क्योंकि आप कंसंट्रेशन के साथ जब डील करते हैं, डोज के साथ करते हैं, तो यू शुड नो द मीट्रिक सिस्टम, आपको मीट्रिक सिस्टम कन्वर्जन ये चीज़ें पता होनी चाहिए. सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस एंड थैंक यू अगेन.